Good morning, everyone. Welcome all to the demo webinar session. It's nice to see all of your enthusiastic participation. I am Shweta, and this educational webinar is a joint effort by TradeSmart and Taking Forward. Just a little brief about TradeSmart. It is one of the India's fastest growing online discount brokering companies, offering the lowest brokerage in the industry. TradeSmart discount brokering platform now boasts over 85,000 delighted customers. Our platform is fast, interactive, and stable with many features for stock, commodity, currency traders, backed by our highly rated customer service and call and trade support. USP points of TradeSmart are lowest brokerage plans, rupees 15 per executed order and rupees 7 per lot. Best in class, advanced and stable trading platforms available for desktop. Browser version available is Nest, Fox Trader and Dartstock. Algo trading and recommendations. And Sign version is mobile app. Free and instant account opening. Now, just briefing about Taking Forward also. It's an institute started by Mr. Rupendra Gajbhie with an objective of complete capital market training. At Taking Forward, various modules are designed like live trading during market hours, technical analysis module to further increase your knowledge about chart reading, trend analysis, and price action trading. Then we have commodity trading options module as well, CMT, CFA, and lot more. Basically, Taking Forward is a pool of traders where each faculty is a self trader and trainer, so everybody is best at their subjects. Now, again, I welcome all participants and market enthusiasts to the financial jungle who have joined us for the demo session. With an objective to simplify profitable support and resistance strategies in intraday, we have with us our subject expert, Mr. Rupendra Gajbhie. He is the host and has 6 years of experience in training. He is an IITian with an experience of 10 years in self trading. He has handled various classes and handled clients who are normal traders, HNIs, etc. Now, today we will be covering following strategies: support level based buying, resistance based selling, trend based intraday strategies, modification of stop loss using buyers and sellers, and profit booking. This is going to be a 40-minute around session. It can exceed also depending upon the topic completion on these techniques. And at the end of the session, there will be a question and answer session. Participants may post their questions in the chat box and we will try to answer each of your queries. Now, sir will be conducting the demo session for these techniques. Now, over to you, sir. Thank you, Shweta. तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है, हमको ये समझना है इस सेशन में कि कैसे हम लोग एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करें और उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे हम लाइव सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मेजरली इंट्राडे ट्रेडर्स ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, पता ही नहीं है किस स्टॉक को खरीदना है। तो हम लोग न्यूज चैनल्स पे जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब से पूछेंगे कि यार आज कौन सा स्टॉक परचेज करना है या किस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सिस्टम नहीं है जो आपको बताए कि आज मुझे क्या ट्रेड करना है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज मुझे इस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करनी है, नेक्स्ट क्वेरी क्या आती है कि किस रेट पे एग्जीक्यूशन लेना है। तो कई बार क्या होता है, आपका डिसीजन सही रहता है बाय करने का या सेल करने का, लेकिन आपकी प्राइस गलत हो जाती है। तो ये प्राइस गलत ना हो, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। फिर थर्ड चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क। हमने पोजीशन एंटर तो कर ली क्योंकि हमारे दोस्त ने बोला, लेकिन उसने स्टॉप लॉस तो बताया नहीं। अब हम अपने हिसाब से पोजीशन का टैब खोल के बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि इतना लॉस है, इसको कैसे, कब ये कम होगा, हमें एग्जिट करना है पोजीशन से या नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पहले से ही चार्टेड नहीं था, पहले से ही आपका प्लान नहीं था कि मुझे रिस्क कितनी लेनी है। तो आप पीएनएल देख के अपनी रिस्क एपेटाइट चेक करते हैं।
चौथी चीज, जब आपका प्रॉफिट बुक होना है तो आपको ये नहीं पता कि मुझे प्रॉफिट अगेन कहाँ पे बुक करना है। अगेन आप प्रॉफिट एंड लॉस का पोजीशंस का टैब देखेंगे अपना, और वहां से चेक करेंगे कि हाँ इतना प्रॉफिट है, 5,000 है, 2,000 है, 10,000 है, मैं कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगेन एक सिस्टमैटिक अप्रोच का कमी है। फिर कई बार क्या होता है जब आप लॉस में होते हैं, तो क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमने कभी लॉस तो बुक किया नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना ट्रेडिंग जर्नी, तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपने किसी भी चीज में, किसी भी और चीज में लॉस बुक किया ही नहीं है, तो आप रेडी ही नहीं हो लॉस फेस करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि वो तब तक एग्जिट ही नहीं करेंगे जब तक वो वापस स्टॉक अपनी प्राइस पे नहीं आ जाता, ब्रेक इवन पे नहीं आ जाता। इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि आपके लॉसेस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और स्टॉक कभी वापस ही नहीं आते। लास्ट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप प्रॉफिट बुक करते हैं एक अच्छे खासे ट्रेड में, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि स्टॉक तो यहां से काफी ऊपर चला गया है। तो नेक्स्ट ट्रेड में आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। आप सोचते हैं कि अब मैं और ज्यादा होल्ड करूंगा तो पिछली बार की तरह मेरा प्रॉफिट कम बुक नहीं होगा, ज्यादा ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस बार क्या होता है, स्टॉक आपकी वैल्यू के टारगेट पे पहुंचने के पहले ही रिवर्स हो जाता है, और जो प्रॉफिट आपका बन रहा रहता है वो भी आपको नहीं मिल पाया। तो ये चीजें क्यों हो रही है? इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हमको निकालना है ना। तो हमारा जो पूरा सेशन है ये सब लोगों के लिए है। ये इसमें जो बिगनर्स हैं, जो जिनने अभी जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी है, वो लोगों के लिए भी है ये सेशन। साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप लोग एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाएं, है ना। आप अपने डीमैट अकाउंट पे, अभी आप ट्रेड स्मार्ट पे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे आपको दो दो क्वांटिटी से ट्रेड कराना स्टार्ट करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटीज में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम आपको तीन क्वालिटीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग इज पेशेंस। तो वी वोंट रन इनटू थिंग्स, हम लोग चीजों के पीछे भी नहीं भागेंगे, है ना। और बाकी की दो क्वालिटीज भी हम लोग टेक्निकल कॉल डिस्कस करते हुए समझते हैं। चलिए आइए स्टॉक मार्केट को थोड़े से बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दो चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में। पहली चीज है इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आपने एक फ्लैट खरीदा, राइट? तो क्या आप उसको अगले 3 महीने 6 महीने में बेच के एक बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। तो उसमें क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा है, राइट। आपका जो फंड इन्फ्यूज्ड है वो काफी लंबे टाइम के बाद आप निकाल पाएंगे अच्छे रिटर्न के लिए। ऐसी चीजें कहलाएंगी इन्वेस्टमेंट। यहीं पे स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दो एनालिटिकल थ्योरीज आपको आनी चाहिए लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी की बैलेंस शीट रीड करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना। यहीं पे जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में कोई गेन ढूंढना चाहते हैं, राइट। तो जब आप शॉर्ट टर्म में कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है। क्यों? क्योंकि यही एनालिटिकल थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये फास्ट होती है, ये इजी होती है, ये चार्ट्स के थ्रू समझी जाती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी एक टूल है। वो लगाना किस पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो लगाना है आपको प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, राइट? मान लीजिए कल संडे है, आप सब लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हमको क्रिकेट मैच खेलने जाना है कल। तो उस क्रिकेट मैच में डिसाइड करेंगे कि बैटिंग कौन करने वाला है। कॉइन टॉस होगा। अब एक सिक्के के दो ही पहलू हैं, हेड्स एंड टेल्स। तो चांसेस क्या है हेड्स आने के 50% और टेल्स आने के 50%। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है। सेम तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं तो आपके किसी भी ट्रेड पे सेम चांसेस हैं, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने 10 ट्रेड करे, सो आउट ऑफ दोस 10 ट्रेड्स व्हाट विल हैपन? तो आपके कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट होंगे कि आपने 10 ट्रेड करे हैं तो 5 में आप पॉजिटिव हैं, है ना, और 5 में आप नेगेटिव हैं।
तो सीखना क्या है, जिन भी स्टॉक्स में आप पैसा लूज कर रहे हो उसमें 1-1 रुपए की रिस्क लीजिए, आपने 5 रुपए गवाए। जिन भी स्टॉक्स में आप गेन कर रहे हैं उसमें 3-3 रुपए का मार्जिन लीजिए, आपने 15 रुपए अर्न करे। एंड रिजल्ट क्या आया आपका, 10 रुपीज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये अपना पहला रूल बनाइए कि जब भी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के होने चाहिए। कई लोग जो नए हैं वो ये सोचेंगे 1:1 क्यों नहीं, तो देखिए 1:1 में तो आप जीरो हो रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट सोचेंगे कि 1:2 रख लेते हैं, तो 1:2 में क्या प्रॉब्लम है, 1:2 में आपको बाकी चीजें भी समझनी है कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी कवर करने हैं, टैक्सेस भी कवर करने हैं, और एक डिसेंट अमाउंट करने के लिए आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट सूट करेगा। अब इसके ऊपर नहीं रख सकते क्या, 1:4, 1:5, 1:10, हमें तो ज्यादा प्रॉफिट ही चाहिए, तो वो सब भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोप्राइटरी पैटर्न्स होते हैं, एक्सपीरियंस लगता है, काफी सारी चीजें। बट फॉर अ स्टार्ट यू हैव टू कीप योर रेशियोज 1:3। तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज पे आपको पूरा काम करना सीखना है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी पे काम करते हुए चलना है, ये बेसिक्स हैं, ये सब आप हमारी वेबसाइट पे जाके इजीली समझ सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस पे अब हम लोग आते हैं। तो देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट। तो निफ्टी 50 का जो चार्ट है इसमें चीजें आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो कोई भी चार्ट अगर होता है तो उसमें पहली चीज क्या पिक करनी है आपको कि वर्टिकल जो लाइन चल रही है इस पे होती है प्राइस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है टाइम। सारे स्टॉक मार्केट के चार्ट प्राइस वर्सेस टाइम के होते हैं। अब मैंने तो लाइन चार्ट लेके रखा हुआ है, यहाँ पे तो आप लोगों ने कैंडल्स ही देखी है, तो मैं लाइन चार्ट क्यों यूज कर रहा हूं इसको समझते हैं। तो आइए हम लोग अपने साइन वेब प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं कि क्यों हमको लाइन चार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। क्या हम कैंडल्स, इंडिकेटर, ऑसिलेटर ये सब नहीं यूज कर सकते, कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग आज समझने वाले हैं। तो देखिए कैंडल्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल्स यूज करनी पड़ेंगी। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जब आप कैंडल यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो प्रीवियस कैंडल का लो होगा, तो ये स्टॉप लॉसेस आपके बड़े बड़े आएंगे। तो इस बड़े स्टॉप लॉस के कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब फास्ट इन फास्ट आउट। इंट्राडे ट्रेडिंग दूसरी चीज क्वांटिटी बेस ज्यादा है, क्योंकि देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कम क्वांटिटी पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपके रिटर्न्स वैल्यू चेंजेस पे भी डिपेंडेंट है। इंट्राडे में आपके पास टाइम कम है तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी क्रिएट होगा, तो रिस्क को मिनिमाइज करना है ऐसे सिनेरियोस में। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अगर हम 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो कैंडल्स बढ़िया काम करती हैं, लेकिन 15 मिनट पे ट्रेड करने पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी टाइम फ्रेम छोटी करके 5 मिनट यूज करनी पड़ेगी। अब 5 मिनट पे ये कैंडल्स इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी। जब ये इफेक्टिवली इतना काम नहीं करेंगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपना चार्ट पैटर्न बदलना पड़ेगा। हम लोग अब यूज करेंगे लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट एक्चुअली होता क्या है, क्या ये कैंडल से बहुत अलग है, बिल्कुल भी नहीं। आप सारी कैंडल्स का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, ये आपको एक लाइन चार्ट दे देगा, है ना। तो लाइन चार्ट यूज करने पे फायदे क्या क्या है, फायदे ये हैं कि चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। देखिए ये डेटा रीड करना बहुत आसान है ना, और स्मूथ हो जाता है काफी डेटा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी 50 के लाइन चार्ट से। तो सेकंड सेट ऑफ रूल जो आपको रखना है अपने लिए वो क्या रखना है, पहली चीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान रखिए 1:3 पे आपको काम करते हुए चलना है। दूसरी चीज ये निफ्टी 50 का डेटा है, इसको समझना है निफ्टी 50 कर क्या रहा है, जो इंडेक्स है मार्केट जो है वो करना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए आप ये टूल यूज कर सकते हैं ट्रेंड लाइन का।
और यहां से आप लाइंस को डार्क कर सकते हैं। ये टूल मैंने यहाँ पे लॉक किया। अब देखिए निफ्टी 50 ने कुछ ऐसा मूवमेंट किया है ना। मैं और लाइन को डार्क कर देता हूं, तो ये देखिए निफ्टी 50 कुछ ऐसा मूवमेंट करते हुए दिन भर चला है। तो ये जो मूवमेंट है ये हमको क्या बता रहा है कि निफ्टी 50 का एक्चुअली कैसा मूवमेंट था। तो ये डार्क लाइन जो बन रही है ब्लू कलर की, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बिहेवियर। ये कर क्या रही है? ये मार्केट की चॉपीनेस को एलिमिनेट कर रही है और आपको डेटा रीड करने में बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होगा कि इस ड्यूरेशन में मार्केट अप था, इस ड्यूरेशन में मार्केट डाउन था, अगेन आया लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ऊपर तो नहीं जा रहा। यहां आया, इधर प्रीवियस लो को ब्रेक करा बट अगेन पुल बैक देके वापस आ गया। तो यहां से आपको क्या चीज पिक करनी है? अगेन हम लोग आएंगे साइन वेब पे और यहां से आपको चीजें समझनी है कि स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो स्टॉक दो तरीके से बिहेव करते हैं किसी भी दिन। एक ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट मतलब निफ्टी 50 को फॉलो जो कर रहे हैं, तो उनको हम उस दिन के कोरिलेटेड स्टॉक्स बोलेंगे कि ये स्टॉक्स निफ्टी 50 के साथ कोरिलेशन में है। दूसरे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो बिहेवियर वाइज बहुत ही अलग चलेंगे निफ्टी 50 से, है ना। तो अगर ऐसे स्टॉक मिलते हैं आपको, तो ये देखिए ये जो स्टॉक है ये एचडीएफसी का स्टॉक है और ये लगभग लगभग निफ्टी 50 की तरह ही चला है। तो निफ्टी 50 की ही तरह चला है, ये देख सकते हैं आप, यहां तक गया। ये कोरिलेशन है स्टॉक में और निफ्टी 50 में। एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफी हद तक एक ही तरीके से मूवमेंट हुआ है। आइए अब हम किसी और स्टॉक को पिक करके देखते हैं जहां पे उसका मूवमेंट कुछ और ही हो। चलिए बजाज ऑटो को हम लोग चेक करते हैं कि बजाज ऑटो का लास्ट डे का मूवमेंट कैसा था। अगेन टाइम फ्रेम, ये चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम फ्रेम क्या है और आपका चार्ट पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो का जो बिहेवियर है, बजाज ऑटो का बिहेवियर पूरा ही उल्टा था निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो अब इस बिहेवियर कोरिलेशन का बेनिफिट क्यों है, हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? कारण बहुत सिंपल है कि एचडीएफसी बैंक क्योंकि कोरिलेट कर रहा था, तो आप उसका पॉसिबल मूवमेंट समझ सकते हैं कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो एचडीएफसी बैंक ऊपर जाता, अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है तो एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रहा है। वहीं पे इस स्टॉक में बजाज ऑटो में ये चीज वैलिड नहीं है क्योंकि निफ्टी और स्टॉक में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। अब ये कोरिलेशन क्या हमेशा रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ये डेली बेसिस पे आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। आगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको देख के समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग करने के लिए आप इसको लाइन ड्रॉ करके टूल्स की मदद से यूज करें। तो पहली चीज हमारी है रिस्क रिवॉर्ड। मैं अगेन रिपीट करते जाऊंगा प्रोसेस। पहली चीज रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमेशा निफ्टी को समझना है कि निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, किस तरीके से बिहेवियर है, कहाँ निफ्टी जाना चाह रहा है। तो वो बिहेवियर ड्रॉइंग आपको काफी हेल्प करेगी चीजें समझने में, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चार्ट्स को समझना। तो आइए हम लोग टीसीएस का चार्ट देख के समझने की कोशिश करते हैं कि टीसीएस के चार्ट्स में हमको कैसे वर्कआउट करना है इंट्राडे पे और बेसिक्स क्या है चार्ट रीडिंग के। तो देखिए ये चार्ट है टीसीएस का। ये इतनी टाइम फ्रेम मेरे पास होनी चाहिए हमेशा। मैं कभी भी चार्ट को देखूं तो आपको समझना पड़ेगा सुबह 9:15 से लेके पूरा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो 12 बजे तक का, तो ये डेटा पीछे का आपके पास हो उस करेंट डे का। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरडे ट्रेडर्स को समझनी है, देखिए मॉर्निंग मूव में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी, लगता है अट्रैक्टिव कि हमने फास्ट एंटर किया, हमको बहुत जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट मिल गया। और जब आप इस तरीके से प्रॉफिट करेंगे तो धीरे धीरे करके आप कई जगह पे फंसेंगे भी, आपके लॉसेस भी बढ़ेंगे। तो बेस्ट चीज क्या होती है मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए? बेस्ट चीज आपके लिए ये है कि आप सुबह के आधे घंटे दूर रहें, आप रिमेनिंग मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करें, उस वोलेटिलिटी से खुद को दूर रखें।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा और आप इंट्राडे पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो ही आप मॉर्निंग मूव्स के लिए जाएं, एल्स शुरू के आधे घंटे की जो हैवी वोलेटिलिटी है उससे खुद को दूर रखें। तो जब 9:45 हो जाए तब थोड़े से चार्ट्स रहेंगे, आपके पास डेटा रहेगा समझने के लिए, रीड करने के लिए, तब आप अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है उस पे काम करें, है ना। बिना चार्ट के एक टेक्निकल एनालिस्ट कुछ नहीं कर सकता, तो चार्ट्स को भी टाइम देना पड़ेगा आपको। तो अब आइए इन चार्ट्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो कोई पहली चीज समझने की क्या है आपकी, कोई भी चार्ट हमें क्या बताता है? कोई भी चार्ट हमें इन रियलिटी बताता है ह्यूमन सेंटिमेंट। कैसे? मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप और मैं हो गए, रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, फिर डीआईज हैं, एफआईज हैं, म्यूचुअल फंड भी बाइंग करते हैं। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो भी एक्टिविटी करते हैं चार्ट्स पे, स्टॉक्स पे, वही आपको चार्ट पे दिखता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि जब स्टॉक इस पॉइंट पे आया बॉटम पे, फिर यहां से ऊपर बढ़ने लग गया, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक गिर रहा था, उसके बाद यहां से जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे उनने बाइंग शुरू करी। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट मतलब जहां से बाइंग शुरू होती है। तो आप हर बॉटम के पॉइंट को देखेंगे तो सेम ही चीज हो रही है कि स्टॉक यहाँ पे आता है ऐसे बॉटम पे और उठना चालू करता है। क्यों उठना चालू करता है? क्योंकि यहाँ से लोग खरीद रहे हैं शेयर को। तो ऐसे बॉटम्स को हम कहते हैं सपोर्ट पॉइंट। अब ऊपर देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे स्टॉक आया, स्टॉक यहाँ आने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ से गिर क्यों रहा है? क्योंकि अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टॉक को बेचना शुरू कर रहे हैं। तो यहां से सेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे टॉप के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस पॉइंट। तो क्या अकेला यही रेजिस्टेंस पॉइंट है? नहीं, ये सारे टॉप के पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? सेलिंग हो रही है। तो ये क्या है? सारे के सारे रेजिस्टेंस पॉइंट। अब तीसरी चीज, डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो डेफिनेशन क्या है टेक्निकल एनालिसिस की? स्टडी ऑफ पास्ट डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो पास्ट डेटा क्या है? जो भी आपके सामने इंट्राडे पे करेंटली अवेलेबल डेटा है सुबह से अभी तक का, वही पास्ट डेटा है। यही आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि अपन पिछले दिनों का डेटा फेच करने जा रहे हैं। फिर और क्या चीजें पिक कर सकते हैं आप, है ना? तो इस तीन चीजें, ये तीन चीजें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इन तीन चीजों की मदद से आपको अब स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। तो आइए हम लोग एक स्टॉक पिक करते हैं जैसे एक्सिस बैंक, और हम इस पे एक टेक्निकल कॉल लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो टेक्निकल कॉल होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे आज। ये लाइन चार्ट है सारे के सारे, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। तो आइए हम लोग पहले समझें कि एक टेक्निकल कॉल रियलिटी में होता क्या है। तो देखिए एक टेक्निकल कॉल के चार एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है बाय का रीजन। अगर आप किसी भी स्टॉक को परचेज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों उसे खरीदना चाहते हैं, टेक्निकल रीजंस के साथ। सेकेंड चीज, आपकी प्राइस, किस प्राइस पे आप स्टॉक में एंटर करेंगे। थर्ड थिंग, हम एंटर कर गए तो हमारी रिस्क कितनी है और हमारा प्रॉफिट कितना बुक होना चाहिए। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपने 100 रुपए पे शेयर खरीदा, स्टॉक चला गया 90 रुपीज पे, 10 रुपए का आपका लॉस हो रहा है। यहीं पे आप हमारे साइन वेब प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो कहलाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर, और आप वो 98 पे रखेंगे। जैसे ही स्टॉक 98 पे आएगा आपका लॉस बुक हो जाएगा, तो आपका लॉस 2 ही रुपए का हुआ। तो ऐसा ऑर्डर जो 98 का होगा वो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहलाएगा। अब यहाँ पे तो रिस्क की बात हो गई। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है और हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 110 रुपए पे, तो 110 रुपए क्या कहलाएगा? आपका टारगेट। तो ये चार एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ट्रेड करने के पहले पता होना चाहिए, ये ध्यान रखें। मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं, उनने पोजीशन एंटर कर ली, अब जो हो रहा है उसके हिसाब से डिसीजन आते हैं कि ज्यादा लॉस हो गया तो बुक कर लो, ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बुक कर लो, या ग्रीड है तो और होल्ड कर लो, फियर है तो रिस्क में हमारी और चेंजेस कर देंगे हम। तो ये चीज नहीं होना चाहिए।
आपको ट्रेड में एंटर करने के पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे एंटर करना है, क्यों एंटर करना है, कितनी रिस्क लेनी है और कितना उसमें टारगेट लेना है। देखिए, आपकी जो इक्वेशन है प्रॉफिट की वो एक ही है, वो है ये, कम पे खरीदो और ज्यादा पे बेचो, बाय एट लो सेल एट हाई। ये दिखने में जितनी आसान है, इंप्लीमेंट करने में उतनी ज्यादा मुश्किल है। तो वो सिस्टमैटिक अप्रोच अगर आप नहीं रखेंगे तो हमेशा हमें बार बार प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। तो हमें एक सिस्टम बिल्ड करना है, तो हम उसी सिस्टम को आज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से चार्ट के बेसिक्स सबको समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम लोग वापस चार्ट्स को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम एक स्टॉक पिक करते हैं। चलिए, लेट्स पिक HDFC बैंक अगेन। और हम लोग इस पे कोशिश करते हैं कि हम एक टेक्निकल कॉल सक्सेसफुली लिख पाए। तो सबसे पहले देखिए, बार बार मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि आप लोगों को अपने चार्ट्स की सेटिंग क्या करनी है। लाइन चार्ट्स क्यों यूज करने हैं ये मैंने बता दिया। मैं इस पे वापस आऊंगा कि इंडिकेटर ऑसिलेटर्स यूज करने हैं तो कौन से करने हैं या यूज ही नहीं करने हैं, है ना। इस पे भी हम आते हैं एक टेक्निकल कॉल लिख के। तो ये देखिए, ये आपका HDFC बैंक का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे टूल्स यूज करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सारे के सारे टूल हमारे साइन वेब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो आप जो अपना डीमैट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक ये लाइन मार्क करता हूँ और इसके अलावा मैं एक लाइन ये मार्क कर रहा हूँ। तो अब सोचिए कि इन दोनों लाइन में अंतर क्या है, इस लाइन में और इस लाइन में। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस लाइन पे, बॉटम लाइन पे सिर्फ ये एक अकेला सिंगल सपोर्ट पॉइंट है, जबकि इस लाइन पे एक दो तीन सपोर्ट पॉइंट है। तो डिफरेंस पकड़िए, है ना। तो डिफरेंस क्या है, ये जो लाइन है ये मल्टीपल सपोर्ट है, ये जो लाइन है ये सिंगल सपोर्ट है। तो खुद सोचिए कि हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहां बेटर मिल रही। प्रोबेबिलिटी स्टॉक की सपोर्ट लेने की वापस कहां पे है, इधर कि इधर, बॉटम पे कि टॉप पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, लोगों ने एक बार खरीदा, दो बार खरीदा, तीसरी बार खरीदा, चौथी बार खरीद रहे थे। कैंडल्स पे देखेंगे तो यहां से भी बाइंग दिख जाएगी आपको। तो समझना क्या है कि हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो बाकी के लोग करना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी किस तरफ है, जहां से रिपीटेड बाइंग आ रही है आपकी, राइट। तो ये जो रिपीटेड बाइंग है ये कहलाता है सपोर्ट लेवल। एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है, उससे जितने ज्यादा मिल रहे हैं उतना अच्छा है। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट लेवल मार्क करना आप सबको आना चाहिए, ये आप हमारे साइन वेब के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब देखिए इसकी प्राइसिंग, प्राइसिंग कितनी है इस लेवल की, 1591.48। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में टिक साइज आपका होता है 5 पैसे का, तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे 50 पैसे के लिए। तो देखिए हमें रीजन मिल गया खरीदने का कि हमने HDFC बैंक में एक सपोर्ट लेवल ढूंढा। कितने रुपए पे ढूंढा, 1591.48 पे। तो कितने रुपए पे, 1591.48 मतलब 50 पे। अब कितने प्राइस पे खरीदना है इसको, तो कई लोग सोचेंगे 1592 पे खरीद लेते हैं, किसी का होगा 93 पे खरीद लेते हैं, कोई सोचेगा कि 1600 पे ही खरीद लेते हैं, क्या जा रहा है, 10 रुपए की तो बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो चीजें समझना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे 5-5 पैसे की भी वैल्यू है, तो आपकी एंट्री भी जितनी प्रिसाइज होगी उतनी ही आपकी रिस्क कम होगी। तो आपकी जो एंट्री होगी यहाँ पे वो होगी कुछ ऐसी, सिर्फ 10 पैसे ऊपर, राइट। इसका क्या कारण है, इसका कारण भी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्यों खरीदना चाहते हो, क्योंकि यहीं से बार बार बाइंग आ रही है, राइट। तो जब यहीं से बार बार बाइंग आ रही है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ आएगा, इसके नीचे ही आएगा, राइट। और वो एक डेफिनेट प्राइस पे होगा। तो अगर हम जितनी ऊपर खरीदेंगे उससे होगा क्या, हमारी रिस्क बढ़ती जाएगी, और रिस्क को ही हमको कम करना सीखना है। ठीक है,
तो चलिए अब स्टॉप लॉस पे आते हैं। अगर हमको स्टॉप लॉस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जो हम लोग स्टॉप लॉस निकालेंगे अभी, ये एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस होगा, ये रियल स्टॉप लॉस नहीं होगा। सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एंट्री प्राइस कैसे निकाली जाती है, सॉरी स्टॉप लॉस कैसे निकाला जाता है? आप अपनी स्टॉक की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इफेक्टिवली सिर्फ 0.1% की रिस्क लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग 1600 रुपए का शेयर है, तो आप यहां से 1 रुपए 60 पैसे घटा दीजिए। जब आपने यहां से 1 रुपए 60 पैसे घटाया तो आपको स्टॉप लॉस क्या मिलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, 1590 आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है ना? तो मैं फिर से बताता हूँ, ये 1.6 रुपीज की रिस्क आई कहां से? आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 0.1% की रिस्क लेनी है और अपना स्टॉप लॉस निकालना है। ये स्टॉप लॉस सही नहीं है, ये सिस्टम में डालेंगे ये हिट हो जाएगा, है ना? हम इसको समझेंगे कैसे इसको मॉडिफाई करना है। लेकिन अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करा के आगे बढ़ाऊं। तो यहाँ पे आपकी रिस्क निकली 1.6 की, 0.1% की। अब रिवॉर्ड, तो 1.6 इंटू 3 करिए अब, तो वो कितना होगा? 4.8। 4.8 आपका रिवॉर्ड हो गया और आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 1596.4। 1596.4। तो देखिए, ये है अब आपका प्रॉपर 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड का एक टेक्निकल कॉल, है ना? जहां पे हमारी रिस्क भी डिफाइंड है, हमारे रिवॉर्ड्स भी डिफाइंड है, और ऐसे डिफाइंड है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन होगा 1:3 के रेशियो में। मतलब हमने इस टेक्निकल कॉल में किया क्या? हमने सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट को समझा कि हो क्या रहा है, कहां से लोग इस शेयर को बार बार खरीद रहे हैं, उस जगह के आसपास हम भी एंटर करें। अगर स्टॉक गिर जाता है, नीचे आता है, तो 0.1% की रिस्क लें, और अगर ऊपर जाता है तो हम अपना 3 टाइम्स का रिवॉर्ड बुक करें, है ना? तो ये एक लेआउट है जिसपे आपको काम करें, ये बेस है आपका जिसपे आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड करना है। ठीक है, तो अब इसको ये क्या टारगेट कैसे है, क्या है? इस अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो क्या 100 के 100 शेयर आप यहीं पे बेच देंगे? शायद नहीं, है ना? ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है, तो हम वहां पे होल्ड करके टारगेट 2 बुक करेंगे। फिर हमारे कोर्स में एक प्रोप्राइटरी पैटर्न है, वो प्रोप्राइटरी पैटर्न अगर आप सीखेंगे तो काफी हद तक आप स्टॉक को कैरी करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है, सीखनी है कि कैसे आपको प्रैक्टिकल ट्रेड सेटअप्स बिल्ड करते हुए मिनिमम पॉसिबल रिस्क में काम करना है। तो हम लोग 2-2 4-4 शेयर से ट्रेड करना सीखना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं नई चीज की। कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों के लिए ये चीज थोड़ी सी पुरानी होगी। वो चीज क्या है? वो चीज है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? अगर आप लोगों ने आजकल जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं और फॉरेन मार्केट्स फॉलो करते हैं, तो गेम स्टॉप का बहुत है कि शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है वहां पे। तो ऐसी चीजों के समझने के लिए आपको थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग आनी चाहिए। तो उसको हम समझते हैं। देखिए, इक्वेशन तो प्रॉफिट की एक ही है, बाय एट लो सेल एट हाई, है ना? अब यहाँ पे अगर आपने 100 रुपए पे शेयर खरीदा, 120 पे बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट है। अब यहाँ शॉर्ट सेलिंग में चीजें होती हैं उल्टी। मतलब आपको पहले बेचना है और बेचने के बाद फिर बाय बैक करना है ना? तो चीज सेम ही हो रही है। ये इक्वेशन जब आपकी लगेगी, कम पे खरीदना और ज्यादा पे बेचना, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन यहाँ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अलग हो जाता है। यहाँ पहले ही बेच देते हैं, है ना? बोरो करके बेचते हैं। और तो हमारा जो सेशन होंगे लाइव आगे के, उसमें हम आपको और डिटेल में शॉर्ट सेलिंग समझाएंगे। फॉर राइट नाउ जस्ट कंसिडर दैट आपको बोरो करके सेल करना है और एक टाइम के बाद आपको बाय बैक करना है। अगर आपका बाय बैक का प्राइस बेचने की प्राइस से कम होता है तो आपका प्रॉफिट है, और अगर आपका बाय बैक का प्राइस इससे ज्यादा होता है, 150 रुपए पे आपने खरीद लिया बेचने के बाद, तो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग ये जो है, अब इसको कैसे हम लोग इंट्राडे में यूज करते हैं?
तो ये पहली चीज इंट्राडे के लिए ही है शॉर्ट सेलिंग, डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, है ना। कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो आप उसको लंबे समय के लिए बेच के नहीं रख सकते। तो उसी तरीके से हम लोग शॉर्ट सेलिंग को इंट्राडे में इम्प्लीमेंट करने का समझते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट है आपका एक्सिस बैंक का, टाइम फ्रेम मैंने अगेन चेंज करी है, और यहाँ पे लाइन चार्ट मैंने यूज किया है। तो अब हम अभी तक हमने बाइंग के लिए क्या ढूंढा था, सपोर्ट लेवल। अब इस स्टॉक में क्या चीज ढूंढनी है हमको, रेजिस्टेंस लेवल, है ना। तो इस स्टॉक में क्या हो रहा है, आप अगेन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टूल यूज करेंगे, तो देखिए मुझे कहीं पे भी कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ने बहुत आराम से एक ट्रेंड बनाया है। तो थोड़ी देर में हम लोग ट्रेंड पे आते हैं, तो उस ट्रेंडिंग फेस के लिए हम एक्सिस बैंक को पिक करते हैं। तो आइए अब हम अपना अगला स्टॉक पिक करते हैं शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। चलिए हम लोग एक बड़े स्टॉक को लेते हैं और बजाज ऑटो पे कोशिश करते हैं कि हम लोग इंट्राडे का कोई शॉर्ट सेलिंग सिनेरियो पिक कर पाए। तो अगेन सेटअप इज लाइन चार्टिंग। अब ये देखिए, ये कुछ चार्ट था आपका, राइट। तो यहाँ पे अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे, सपोर्ट लेवल। अब हमको क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस लेवल। अगेन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टूल पिक करना है, और देखिए अगर मैं यहाँ पे ये लाइन मार्क करूंगा तो मुझे एक साथ 3 रेजिस्टेंस मिल रहा है, 1 2 एंड 3। तो शायद हम यहाँ कहीं शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। अब इसकी प्राइस कितनी है, 4250.75। तो अब यहाँ पे सेल करना है, राइट। तो आपको सेल करना है। सेल करने का कारण क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस लेवल। इस स्टॉक में बजाज ऑटो में आपने कहा आइडेंटिफाई किया, 4250.75 पे। 4250.75 पे आपने एक लेवल आइडेंटिफाई किया। अब एंट्री कहाँ करेंगे शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आप, अब आपको जैसे हमने यहाँ पे 10 पैसे ऊपर एंट्री करी थी, उसी तरीके से अब आपको 10 पैसे नीचे एंटर करना है, क्योंकि अब आप बेच रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एंट्री। अगेन रिस्क कितनी लेंगे हम, सेम रिस्क लेंगे 0.1% की, मतलब स्टॉक को डिवाइड करिए 1000 से, 1000 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 4.2 रुपीज लगभग। तो सिंपली 4.2 रुपीज यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये सब्ट्रैक्शन पे आपको मिल रहा है 4246.45, 4246.45 होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। अब यही है जो आपको समझना है। ये गलती बिगनर लोग कर देते हैं, क्या, कि रिस्क निकाल ली शॉर्ट सेलिंग में और फिर उसको अगेन सब्ट्रैक्ट कर दिया। चीज समझिए, ये केस है शॉर्ट सेलिंग का, मतलब आपका लॉस कहाँ है, जब स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस को ऐड करना है, राइट। तो ये मिस्टेक्स बिगनर्स करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को ऐड करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या है, 4254.85। अब बारी आती है टारगेट की। तो टारगेट कैसे निकालेंगे हम, टारगेट निकालने के लिए अब ये रिस्क है हमारी 4.2 की, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका टारगेट कितना आएगा, 12 रुपीज 60 पैसा। अब क्या ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे चीज समझिए, ये जो आपका टारगेट है ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इट विल बी 4238.05। ओके। तो ये फ्लो रखना है हमको, है ना। ये फ्लो रख के आपको काम करना सीखना है। यहाँ पे अगेन अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको किस चीज पे कवर करना है, आपको इस चीज पे कवर करना है कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के है कि नहीं, बोथ इन केस ऑफ बाइंग एंड ऑल्सो इन केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का ही आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको पिक करते हुए चलना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि एक भी इंडिकेटर नहीं लगाया, इतनी कलरफुल चीजें होती हैं हमारे पास, तो एक भी ऑसिलेटर नहीं लगाया। तो कैंडल्स का तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि आपको कैंडल्स क्यों हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब बारी आती है इंडिकेटर ऑसिलेटर की, तो इसको समझिए। ये है हमारा बोलिंजर बैंड,
और चलिए आइए हम लोग ले लेते हैं एमएसीडी को। प्रॉब्लम समझना स्टार्ट करिए तो आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। अब ये बोलिंजर बैंड मैंने जो यूज किया, तो बोलिंजर बैंड बाय का सिग्नल दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक सेल का सिग्नल दे रहा है, अगेन ये मुझे यहाँ पे बाय दे रहा है और यहाँ पे अगेन सेल दे रहा है। तो ये सिग्नल्स हो क्या रहा है, मल्टीपल आ रहा है ना। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हमारी टाइम फ्रेम शॉर्ट है, तो इंडिकेटर क्या करेगा, मल्टीपल सिग्नल दे देगा। सेम गोज विथ ऑसिलेटर। ये नीचे देखिए, एमएसीडी ने आपका यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे फिर से सेल दे दिया, तो ये हो क्या रहा है, मल्टीपल सिग्नल मिल रहा है। तो ये मल्टीपल सिग्नल्स इंडिकेटर ऑसिलेटर जनरेट करेंगे क्योंकि टाइम फ्रेम आपने शॉर्ट कर दिया। तो ये टाइम फ्रेम शॉर्ट करने से होगा क्या, आपका ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कैसा ट्रेड चाहते हो, कि आप बाय करो तो आपके फेवर में जाता रहे और सेल करो तो नीचे गिरता रहे, राइट। और आप इंडिकेटर ऑसिलेटर पे जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, कि आपको मल्टीपल सिग्नल्स बार बार मिलते रहेंगे, आप उसी हिसाब से ट्रेड करते रहोगे, आपका ब्रोकरेज बढ़ता रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी ट्रेड करना है वो एक लिमिटेड रिस्क के साथ करके एग्जिट करना है, और जहां पे प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते जाना है। तो क्या अब ये इंडिकेटर ऑसिलेटर जो मल्टीपल सिग्नल दे रहे हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, इनका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन होता है मार्केट डेप्थ, है ना। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं मार्केट डेप्थ का। तो मार्केट डेप्थ बेसिकली होती क्या है, इसको समझते हैं। ये देखिए, ये आप कोड क्लिक कर सकते हैं, ट्रेड क्लिक कर सकते हैं, साइन वेब पे दोनों जगह से चीजें मिल जाएंगी आपको। तो ये आपकी मार्केट डेप्थ आ रही है, ये यहाँ पे, है ना। तो मार्केट डेप्थ में क्या होता है, ऑर्डर, बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस। मतलब कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने रेट पे खरीदना चाहते हैं। आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी और ऑर्डर, कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने रेट पे बेचना चाहते हैं। तो नॉर्मली लोग इसको रीड कैसे करते हैं, कि टोटल बायर ज्यादा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, टोटल सेलर ज्यादा है तो स्टॉक नीचे जाएगा। तो ये मिस्टेक गलती से भी ना करें, ये कुछ भी नहीं बताता। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है लोगों का, कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो भी करना क्या चाह रहे हैं। आपने 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, 1 घंटे बाद आपको जाना है तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दोगे, तब तक आपके भरोसे ये टोटल बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा और आप में से कोई थर्ड पर्सन बाय कर लेगा क्वांटिटी ज्यादा देख के। तो ये चीज समझिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे ना जाए। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कि ये कुछ ऐसा सिनेरियो हम लोग लेते हैं, है ना। तो यहीं से आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने का भी थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये जो इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, ऑर्डर्स कितने हैं, ये इनसिग्निफिकेंट है, किसी काम का ही नहीं है। काम का क्या है हमारे, कितनी प्राइस है और कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर ये बाइंग साइड है, ये सेलिंग साइड है, आपको मार्केट में कोई भी चीज जल्दी खरीदनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है। अभी सैनिटाइजर्स की कमी हो गई थी तो क्या करा था लोगों ने, ज्यादा पैसे देके सैनिटाइजर खरीदा था। तो ये जो पर्सन है, ये टॉप का बायर है। अगर मुझे मार्केट में कोई चीज जल्दी बेचनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उस चीज का रेट गिराना पड़ेगा। तो ये कौन हो गया, 105 रुपए वाला, मेरा टॉप का सेलर। अब इन दोनों लोगों में, इस स्टॉक में, ये टॉप का बायर है, ये टॉप का सेलर है, लेकिन दोनों की प्राइस एक है क्या, नहीं है। इन दोनों की प्राइस अलग अलग है। इन दोनों के प्राइस के डिफरेंस को स्प्रेड कहा जाता है। तो ऐसा स्प्रेड होता है। फिर आप देखिए, एक 100 पे खरीदना चाहता है, अगला 99 पे। यहाँ देखिए, एक 108 पे बेचना चाहता है, 110 पे बेचना चाहता है। तो ऐसी चीजों को गैपिंग कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपके स्टॉप लॉस में इंक्लूड होती। आपको इंडिविजुअली स्टॉक की मार्केट डेप्थ रीड करके, ऐसी चीजें इंक्लूड करके, फिर और भी चीजें समझनी पड़ेंगी मार्केट डेप्थ के हिसाब से। जो मेन चीज है मार्केट डेप्थ में, वो हम लोग अपने कोर्स में कवर करते हैं।
वहां पे आपको ये सारी चीजें हम लोग लाइव ट्रेड करा के सिखाएंगे कि कैसे स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई करा जाता है। मैंने जस्ट एक टेंटेटिव ओवरव्यू आपको दिया है कि कैसे आपको मॉडिफाई करना है। अब बारी आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो प्रॉफिट में अगर हम है तो क्या सारा प्रॉफिट हम एग्जिट करेंगे सेम टारगेट पे? नहीं, स्टॉक इससे भी नीचे गिर सकता है। तो हमको डबल टारगेट लेना है, ट्रिपल टारगेट लेना है। फाइनली हमारे पास एक फाइनल सॉल्यूशन इसका जो है एक पैटर्न, प्रोप्राइटरी पैटर्न है हमारा। वो पैटर्न अगर आप यूज करेंगे तो आप उस तरीके पे भी होल्ड कर पाएंगे। फिर जो हमको चीज पिक करनी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से, वो है हमें ट्रेंड लाइंस को समझना इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेंड लाइन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अगर आप इंट्राडे पिक करना चाह रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको अपना ट्रेड सेटअप बहुत ही सिंपल रखना है। हम किसी भी चीज में कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पेशेंस। यहाँ पे टेक्निकल कॉल में पेशेंस किस चीज का लगता है? स्टॉक चल रहा होगा 1595 पे, क्या हम एंटर कर जाएंगे? गट फीलिंग आती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा यहाँ से, तो एंटर नहीं करना है। पेशेंस यहीं चाहिए कि जहां डिसाइड किया है वहीं एंट्री है। दूसरी चीज डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वेट नहीं करना है कि वापस आएगा। ये टेंटेटिव है, एक्चुअल भी जब आप निकालेंगे तो भी वेट नहीं करना है कि स्टॉप लॉस पे अभी रुक जाते हैं थोड़ा और पुल बैक देगा। तो डिसिप्लिन यहाँ काम आएगा। और तीसरी चीज इमोशनलेस ट्रेडिंग। तो किसी दिन बहुत प्रॉफिट होगा तो ये नहीं सोचना है कि हमको सब कुछ आ गया है। किसी दिन बहुत बड़ा लॉस होगा तो घबराना भी नहीं है। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ आपको काम करना है। तो यहीं पे हम लोग करते क्या है, हमारे लाइव कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में हम आपको मेंटरिंग भी देते हैं इन तीनों चीजों पे। साथ ही साथ धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बिल्ड करने में आपकी हेल्प भी करते हैं। तो हम लोग 2 क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, 2 से 10, 20, 50, 100, फिर 100 के मल्टीपल्स। तो लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे आपको 100 क्वांटिटीज पे पहुंचने में, शायद, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमारे 2 साल पुराने जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इजीली 2000, 4000, 10,000 क्वांटिटी में भी ट्रेड कर पाते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे आएंगी, है ना? क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न बाय वॉचिंग वीडियोस कंटेंट और बाय रीडिंग बुक्स, है ना? आप इसको कंपेयर कीजिए ड्राइविंग या स्विमिंग से। तो ड्राइविंग और स्विमिंग, क्या आप सिर्फ किताबों से या वीडियो देख के सीख सकते हैं? नहीं, ये दोनों चीजें एक एक्सपीरियंस है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी एक एक्सपीरियंस है। बिना वो एक्सपीरियंस लिए, बिना कुछ इसमें इन्वेस्ट करे, बिना कुछ लूज करे, आप कुछ भी गेन नहीं करने वाले। तो ये जर्नी है पूरी, इस जर्नी के थ्रू ही आपको जाना है। तो चलिए, आइए अब हम लोग अपने सेशन के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रेंड पे। तो ट्रेंड होता क्या है? ट्रेंड स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है, स्विंग भी करना है, पोजिशनल भी करना है, वहां पे भी ये लगेगा। और ये अकेला ऐसा टूल है जिसके भरोसे आप बाकी सारी चीजों को इग्नोर भी कर सकते हो। तो ट्रेंड दिखने में बहुत आसान होता है कि ये ड्रॉ करना और इसको ऐसे पिक करना बहुत ही आसान है। लेकिन रियलिटी में ट्रेंड पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है ना? तो जैसे हम लोगों ने आज देखा था एक्सिस बैंक का चार्ट। तो एक्सिस बैंक के चार्ट को देखते हैं हम वापस, टाइम फ्रेम फिर से बदलते हैं और लाइन चार्ट पे आते हैं। लाइन चार्ट पे फायदा भी होता है, बहुत चीजें इजी हो जाती। तो ये देखिए, ये यहाँ से स्टॉक ने किया क्या? पहले तो ऊपर का मूवमेंट दिया, उसके बाद ये सिंपली यहाँ से गिर ही रहा है, राइट? तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई, ये मैंने तीसरी ट्रेंड लाइन बनाई। किस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेना है, किस पे हमें एंट्री करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पिक करनी रहती है ना? तो ट्रेंड लाइन पे कैसे आप काम करेंगे? ये डाउन ट्रेंड है। इसी तरीके से अगर आप इसका और प्रीवियस मार्केट देखेंगे तो ये अप ट्रेंडिंग है। फिर यहाँ पे भी एक ट्रेंड है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस लगता है एक इंट्राडे ट्रेड पिक करने के लिए। इसमें आपको
पूरा ट्रेड सेटअप पता होना चाहिए कि आप कैसे ट्रेंड को पिक कर रहे हैं। तो ट्रेंड पे आइए हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम एक ट्रेंडिंग स्टॉक को पिक कर पाएँ या कैसे हम एक ट्रेंड बेस्ड ट्रेड ले पाएँ। तो टाटा मोटर्स को हम लोग पिक करते हैं। यहाँ से अगेन वी हैव टू चेंज द सेटिंग्स, और ये देखिए, ये इस फेज में अगर हमको कहीं पे भी एंटर करना है तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक था साइडवेज। ये जब लो ब्रेक हुआ आपका तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो जाके आप एक ट्रेंडिंग लाइन बना सकते थे, ट्रेंड लाइन बना सकते थे, वो कुछ ऐसे बनती है ना। तो यहाँ कहीं पे आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। और कैसे कैरी हो रहा है ट्रेड ये आप देख ही रहे हैं। तो इसी को डिटेल में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे हमारे ट्रेंड एनालिसिस के कोर्स में। तो ट्रेंड अप ट्रेंड भी होता है जो बाइंग करने के लिए यूज किया जाता है, डाउन ट्रेंड भी होता है जो सेलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेंड सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है, ये आपको सारी जगहों से लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे में हर जगह पे बेस्ट सूटेड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का चार्ट है ना। ये टूल्स पे आप जितना अपना हाथ सेट करेंगे उतना अच्छा है, ये टूल्स आपको आने चाहिए यूज करने के लिए। तो ये देखिए, ये ट्रेंड है ना। तो यहाँ कहीं पे आप एंटर कर सकते थे, ये आपका स्टॉप लॉस होता है ना। पॉसिबल टारगेट चल ही रहे हैं स्टॉक के। अगेन एक लाइन से कुछ नहीं होता, मल्टीपल लाइंस आपको बनानी आनी चाहिए। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ आपकी रिस्क कम है, कहाँ आपकी रिस्क ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने ट्रेंड के उसमें कवर करते हैं, और इसी तरीके से आपको टेक्निकल कॉल लिखते हुए एक ट्रेड पिक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर करी। नाउ ओवर टू यू श्वेता। Thank you, Rupen sir. It was really an eye opener of how to initiate intraday trades. और एक बार मैं फिर से आपको ट्रेड स्मार्ट के पूरे प्लान्स और यूएसपीज बता दूं। यहाँ पे हमारे 85,000 से ज़्यादा डिलाइटेड कस्टमर्स हैं, और आपका जो लोएस्ट ब्रोकरेज प्लान है, यूएसपी यहाँ पे मेंशन है, ₹15 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है और ₹7 पर लॉट है। बेस्ट इन क्लास एडवांस एंड स्टेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। डेस्कटॉप के लिए ब्राउजर वर्जन में नेस्ट, फॉक्स ट्रेडर एंड डार्ट स्टॉक, अल्गो ट्रेडिंग एंड रिकमेंडेशंस, और मोबाइल ऐप आपके लिए साइन अवेलेबल है, साइन वेब। फ्री एंड इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग ऑफर्स अभी चल रहे हैं, तो आप लोग लिंक शेयर्ड है चैट बॉक्स में, आप उसके थ्रू अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं।